ہمیشہ دل سے عزت آپ کی ہے، ہمیشہ آپ کی عزت برقرار رہے گی دل میں. آپ نے جو ٹائم دیا، اور یہ جو نوم نہاد مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو نبی کی تعلیم سے ڈھیروں دور ہیں، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آقا کے غلام ہیں. اگر یہ آقا کے غلام ایسے ہوتے ہیں تو ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے آقا کے غلاموں کو. بڑی بہت شکریہ، مہربانی پیر صاحب، آپ بہت نے شکریہ، ٹائم دیا اور بہت آپ نے شکریہ، عزت رکھی کہ بات کرنے کا موقع دیا. بہت بہت شکریہ. شکریہ راجہ صاحب. یہ طارق جی صاحب کچھ کہنا چاہتے تھے مجھ سے پہلے. جی محترم میں طارق ایک صاحب. بات کہنا چاہتا ہوں پپو ملک صاحب کو. بھائی کوئی مسئلہ ٹروتھ نہیں. سیکر تمہاری باری نہیں ہے، تمہیں ایوزی جی پیچھے نہ بولو. اچھا میں جوان اجازت صاحب. مانگ رہا تھا. ہاں تم جاؤ، اجازت تمہیں ہے، جاؤ کرنے بعد دفعہ کیا ہو ہو جاؤ گیا؟ جو میں تم آئے ہیں پیسے نکل ہائی کے. ہو گیا آپ کا. جی اصل چوہان بات جی. یہ ہے کہ یہ چنگیز خان غیرت کی بات کر رہا ہے. اچھا مرزائیوں کی بغیرتی دیکھیں کہ ملک ایوان جیسے ایک گالی باز زنیم ولد زنا سے میرا یہ مراد نہیں ہے کہ اس کی ماں نے زنا کی ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کی حرکتیں ایسی ہیں، کیونکہ وہ بات بات پہ قسم کھاتا ہے، ہر ایک کو گالی دیتا ہے، خود کو بھی پیر گالی صاحب، دے. یہ اس لیے کسی کے اوپر اور چنگیز بہتان خان بازی، یہ جو بکواس اپنی طارق بند صاحب کر، لگا رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں بند ایسے؟ کر کسی چنگیز کے خان اوپر بکواس. کسی کو تیری میں بلد زنا غیرت کہنا دی، اچھی بات ہے. ایک تیری منٹ غیرت کڈنا میں. اب میں کہوں کہ یہ اور نیچر چنگیز خان چپ کر جا، میری باری ہے. ٹھیک ہوگی بات. چوہان جی ایک منٹ، چوہان جی ایک منٹ. دیکھیں ہم نے پتھر دل پر رکھ کر اللہ جانتا ہے آپ کی باتیں برداشت کی، ذرا صبر کا تقاضا. جی 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 چوہان جی. جی. 4 ہو گئی ہیں گالیاں طارق اچھا چوہان یہ کی. اس کی بغیرتی دیکھیں، یہ 5 کہہ رہے ہیں نا دوسروں کو بغیرت، اس کی یہ 6 چنگیز خان کی بغیرتی دیکھیں. 7 جب یہ سارا معاملہ ہوا تھا تو اس میں جو جس چیز کے اوپر انہوں نے اپنا فیصلہ کرنا تھا، ایک مرزائی بغیرت کو نہیں پتا کہ وہ کیا 8 بات تھی. یہ مرزائی اندھوں کی طرح ملک ایوان کے پیچھے ہیں، جو ہر وقت ماں بہن کی گالیاں نکالتا ہے اور قسمیں کھاتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی گالیاں نکالتا رہتا ہے. او مرزائیو، تمہیں کوئی شرم حیا بالکل نہیں ہے، کوئی انصاف کا تمہیں ہے ہی نہیں ہے کوئی مادہ کہ تم دیکھو کہ کوئی مقدمہ کبھی ایسا ہوتا ہے. میں نے جب مقدمہ کیا تھا، میں نے دونوں فریقین کو وقت دیا، بار بار ان سے پوچھا آپ نے کچھ کہنا ہے، آپ نے کچھ کہنا ہے. جب انہوں نے ساری بات کر دی اور انہوں نے کہا ہم نے اپنا سارا کچھ بیان کر دیا ہے، تو پھر فیصلہ دیا گیا کہ جو بھی ایویڈنس آپ نے رکھنی ہے. دونوں فریقین نے دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے آرام سے ہماری بات ہوئی تھی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی کچھ نہیں ہوا. تو اس کے بعد پھر فیصلہ آیا. یہ ہوتا ہے فیصلہ، یہ فیصلہ ہوتا ہے بغیرت مرزائیوں کہ نو. ایک بندہ جو اپنے حق میں فیصلہ کسی جج کے اوپر پریشر دے کے کرا رہا ہے، دوسرا فریق وہاں بیٹھا ہی نہیں ہوا، اس کو بار بار نیچے اتار رہے ہیں، اور آپ نے وہ اس کو فیصلہ کہہ دیا جی فیصلہ آ گیا، فیصلہ آ گیا. کوئی شرم حیا تم لوگوں کو ہے نہیں؟ یہ اس سے بڑی بغیرتی کوئی ہو سکتی شکریہ، ہے کہ تم شکریہ خود اپنی چوہان جی. ان بہت حرکتوں شکریہ. کی وجہ سے ایک غلط فیصلے کو، ایک غلط طریق کو تم سپورٹ کر رہے ہو، اور تم کہہ شکریہ رہے ہو چوہان جی. ہم بڑے اسلام کے بڑے علم بردار ہیں. بھی تمہارے صاف پتہ چل رہا ہے کہ تم مرزائی ایک گالی باز، ایک گندے انسان کی پشت بنائی 11 صرف اس لیے کر رہے ہو 12 کہ شکریہ چوہان جی. شکریہ شکریہ. 12 کاؤنٹر رہن کی گالیوں کا. ویسے آپ ریکارڈنگ گالیوں کی چلا دیتے جو آپ کا کام کر رہے ہیں اس وقت سے آپ. اچھا یہ جو فیصلہ ہے نا، یہ ریکارڈنگ پہ ہونا تھا، ٹھیک ہے. بعد سائڈ یہ ہوئی تھی کہ ریکارڈنگ جو ہے وہ سن کے آپ فیصلہ دیں. اس میں جب ریکارڈنگ کی بات ہوئی تھی، ضیاء نے یہ کوئی احتجاج نہیں تھا کیا کہ یہ مجھے ریکارڈنگ. یہ کیوں بند کیا؟ میرا تو ابھی ٹائم تھا. ازخانی صاحب آپ نے مجھے میوٹ کیا ہے. نہیں میں نے میوٹ تو نہیں کیا، میں نے 1-2 مرتبہ آپ کو 2 منٹ آپ کے ہو گئے تھے. آپ نے اگر کرنا ہے تو 1 نہیں، منٹ آپ اور نے اس کو تو 3 منٹ دیے تھے، میرے 2 منٹ کیوں ہو گئے؟ چلیں آپ لے لیں 1 منٹ اور. ہاں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مرزائی ہیں، یہ ملک ایوان کے پیچھے یہ خود بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک گالی باز انسان ہے. وہ خود کو بھی گالیاں دیتا ہے، اپنے آپ کو بھی گالیاں دیتا ہے، دوسروں کو بھی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی ریزننگ ہو ہی نہیں سکتی. جس نے ہر وقت بکواس ہی کرنی، ماں بہن کی کرنی ہے، اس کے ساتھ کیا ریزننگ ہوگی؟ لیکن مرزائیوں کی بغیرتی دیکھیں کہ ایسے گالی باز شخص کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے خلاف ہمیں کوئی ایک موقع مل گیا. بھئی غلط طریقے سے اگر تم کرو گے تو تمہاری ذلت اور رسوائی جو تمہارا ہمیشہ سے مقدر رہی ہے، اب بھی مقدر ہوگی. تو اس سے تم لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا، تمہاری ذلت اور رسوائی میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، جو تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ تم ایک گالی باز کے پیچھے کھڑے ہوئے ہو جس نے کوئی مقدمہ نہیں ہوا، کوئی فیصلہ نہیں ہوا، تم لوگوں نے کا فیصلہ کر دیا. اس طرح کوئی فیصلہ ہوتا ہے؟ کوئی شرم آیا کرنی چاہیے مرزائیوں کو. شکریہ، بہت شکریہ. جی ٹروتھ صاحب جی بولیں. اصل میں یہ جو فیصلہ ہونا تھا نا، یہ ریکارڈنگ سن کے ہونا تھا.
ٹھیک ہے، اور دونوں نے مل کے بھگوان کو جج بنایا، اور یہ طے ہوا کہ ریکارڈنگ جو ہے وہ سنیں گے 3 دفعہ 4 دفعہ جتنی دفعہ ریکارڈنگ سننی ہے وہ ریکارڈنگ سننے کا بھگوان جو ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جی ضیاء نے احتجاج کیا ہو کہ جی ریکارڈنگ یہ والی نہیں تو یہ والی سنائیں، یہ والی۔ اس کو احتجاج صرف اتنا تھا، اور عامر نذیر اگلے دن 1-2 دن بعد بھی یہی احتجاج کرتا تھا کہ موقف نہیں سنا گیا، ٹھیک ہے، ریکارڈنگ کی بات نہیں تھی ہوئی، یہ کہا گیا کہ موقف نہیں سنا گیا، ضیاء کو نیچے اتار دیا گیا، ٹھیک ہے، یہ ان کی شکایت تھی۔ یہ کسی نے شکایت اس وقت بھی ضیاء نے نہیں کی ہے شکایت کہ جی یہ دونوں کا یہ طے ہو گیا تھا کہ یہ والی ریکارڈنگ ہے یہ بھگوان سنے گا، بھگوان نے ریکارڈنگ سننی تھی، اس میں باقی 2 پارٹیوں کا بلانا ضروری نہیں تھا، اس نے بھگوان نے بھائی کسی نے شکایت کی ہے، تھوڑا سا ٹپ ٹپ کیجئے، یہ پتہ نہیں کون بے غیرت شکایت کرتا ہے بھائی، جی۔ اس کے بعد تھوڑا سا ٹپ ٹپ کیجئے۔ جی بہرحال جو اس نے طلعت صاحب نے بلایا تھا ضیاء کو اور بھگوان آ گیا، ضیاء نہیں آیا، لیکن ویسے سننی اس نے ریکارڈنگ ہی تھی بھگوان نے، اس نے دوبارہ دونوں کی بات نہیں تھی سننی۔ جہاں تک موقف کی بات ہے، دونوں کا موقف سنا گیا، انہوں نے طلعت صاحب نے اپنا موقف بتایا کہ آپ ریکارڈنگ 3-4 دفعہ سن لیں، ضیاء نے بھی کہا کہ ریکارڈنگ سن لیں، لیکن ساتھ اس نے موقف ضیاء نے یہ بتایا کہ رپیٹ کر دو کہ میرا کیا موقف ہے، بھگوان کو یہ کہا، بھگوان نے رپیٹ کیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ وہ استعمال ہوئے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے، تو اس پہ ضیاء نے آگے سے کہا بالکل، ٹھیک ہے، ایگری کر گیا ضیاء بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا لڑائی ہوئی کیا نہیں ہوئی وہ لڑائی چیز ہے، لیکن دونوں کے موقف بھگوان نے سن کے اور دونوں پارٹیوں نے ایگری کر دیا کہ جو تمہارا سٹینس ہے وہ تمہارے تک پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے ڈیسیجن ریکارڈنگ سن کے دے دیا، اب وہ ڈیسیجن ہو گیا، اب 1 ہفتے 3-4 ہفتے بعد اگر وہ ڈیسیجن چینج کرتا ہے، یہ وہ چینج نہیں کر سکتا انلیس کہ دونوں اپیل پہ گئے ہوں۔ جہاں تک جو یہ بات کر رہے ہیں رانگ نمبر صاحب بات کر رہے ہیں کہ وہ کوئی نیا ایویڈنس آیا ہے، رانگ نمبر صاحب کا کام ہے کہ جا کے ان سے پوچھیں وہ ایویڈنس ہے کیا، ٹھیک ہے، وہ شو کرے وہ ایویڈنس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بات ہی ریکارڈنگ کی ہوئی تھی، نہ کسی نے شکایت کی تھی کہ ریکارڈنگ غلط سنی ہے، ضیاء رسول یا کسی نے کتنے ہفتے تک کوئی ایسی شکایت نہیں تھی کہ اب جا کے اپنی شکایت کو چینج کریں، ٹھیک ہے، وہ ٹروت ہاں صاحب جی وہ ایویڈنس لے لیں پہلے رانگ نمبر صاحب کہ وہ انہوں نے کیا چیز آئی۔ ٹروت صاحب ایک منٹ، ٹروت صاحب آپ کا ٹائم پورا ہوا، میں آپ کو پھر 1 منٹ دے دیتا ہوں۔ پیر صاحب 1 سیکنڈ، پیر صاحب یہ جو موڈریٹر آپ نے بنائے ہیں ان کو ہٹا دیں، موڈریٹر ہٹا دیں ارے بھائی 1 منٹ، اللہ بھائی جی کس کو اتارا؟ شان بھائی میں ماڈریٹر ہوں ہی نہیں آپ نہیں، میں ماڈریٹر ہی نہیں ہوں یار، میں کیسے اتارا؟ سوری مجھے سوری پتہ نہیں کون اتارا ہے۔ کس کو اتارا؟ کس کو؟ طارق چوہان صاحب کو، یہ کون اتار سکتا ہے؟ کوئی نہیں پتہ اتار نہیں کسی نے سکتا، اتارا ہے ان کو۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے چوہان صاحب کو اتار دیا جائے۔ بھائی نے کون صاحب؟ کہا ہے کہ مجھے کس نے اتارا ہے، تو کدھر ہے؟ ان کو بلائیے، وہ ہے نہیں۔ وہ اب موجود نہیں ہے۔ بلاک تو نہیں کر دیا کسی نے، بلاک لسٹ دیکھیں کسی نے بلاک تو نہیں کر دیا۔ 1 منٹ میں دیکھ لیتا ہوں، اور آپ ثانی بھائی آپ ایسے چلے گئے اور سارے مسلمان بنے ہیں، اس مسلمانوں نے کوئی بغیرتی کی ہوگی، ایسی بغیرتی مسلمانوں نے کی ہوگی، سارے مسلمان موڈریٹر ہیں۔ یار چنگیز خان والا لفظ دونوں تیرا کچھ نہیں چنگیز، تمہارا سچ میں کچھ نہیں بن سکتا۔ طارق گالی دینے کا کیا فائدہ ہے میرے بھائی؟ چنگیز خان تمہارا تمہارا دیں گے کچھ نہیں ہو کوئی سکتا، بات تو نہیں گئے۔ بات تو تمہاری سن قسمت میں چوہان ضلالت لکھی ہوئی ہے۔ بات سن لیجئے، بات سن لیجئے، بات یہ ہے ٹرو صاحب، میں آپ کو 1 منٹ پھر سے دے دیتا ہوں، صرف اتنا بتا دیجئے کہ کس بات پہ شرط لگی تھی، پلیز 1 منٹ اور آپ کا ہے۔ تو شرط اس بات کو لگی تھی کہ ریکارڈنگ میں جو 1 دن پہلے ان کی ڈسکشن ہوئی تھی طلعت صاحب کی اور ضیاء رسول کی، وہ یہ ہوئی تھی کہ ضیاء رسول کہہ رہا تھا کہ طلعت صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس نے یہ بات کی ہے کہ جو حدیث ہے وہ حدیث جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ جہاں پہ طاعون پھیلا ہو وہ جگہ ادھر نہ جاؤ، ٹھیک ہے، یا تو وہ ایسی کوئی حدیث جو ہے ثابت کرے کہ ایسی حدیث ہے طلعت صاحب سے، تو وہ یہ اور کہہ رہا تھا کہ یہ بات انہوں نے غیر شرعی کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ طلعت صاحب کا تھا کہ مفہوماً ضیاء رسول یہ بات کر رہا تھا، ضیاء رسول آگے سے کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ الفاظ دکھا دو، میں نے یہ الفاظ نہیں کہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں نے یہ جو موقف ہے وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی پتہ تھی کون سی ریکارڈنگ ہے،
ٹھیک ہے, دونوں نے کوئی ایسا احتجاج نہیں کیا تھا کہ ریکارڈنگ آپ غلط پیش کریے, کوئی ایسی چیز نہیں تھی, ریکارڈنگ کا پتہ تھا کون سی ریکارڈنگ ہے. بھگوان کو صرف ان کو شکایت صرف یہ تھی کہ ہمیں موقف نہیں دینے دیا گیا, لیکن موقف بھی دیا تھا دونوں نے. ایک منٹ, آپ بات لمبا کر رہے ہیں. آپ سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے وہ جواب نہیں دے رہے. آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ جانتے نہیں کس بات پہ وہ شرط لگی تھی. میں آپ کو سنا دیتا ہوں وہ شرط کس بات پہ لگی تھی, تاکہ آپ شاید انصاف کریں. شاید, امید تو میں نہیں کرتا, لیکن شاید. سن لیجیے, اب مجھے امید نہیں ہے کہ آپ انصاف کریں گے سننے کے بعد بھی, لیکن پھر بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ مائک میرا کس نے بند کیا؟ اب تجھے کسی نے بلایا بیچ میں؟ یار بات سن لو, سو نہیں بچو دے دو تننا چو تیرا چو. ملک صاحب یہ بات میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں نے بار بار مطالبہ کیا ہے, لیکن شرط اس بات پہ ہے کہ میں نے یہ کہا ہو کہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے یا یہ شریعت کے خلاف ہے. ہاں, یہ ہے وہ بات. ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم نے کہا یہ شریعت کے خلاف ہے, یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. کہتے ہیں میرے وہ الفاظ کدھر ہیں کہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے اور یہ شریعت کے خلاف ہے؟ یہ کدھر دکھایا ملک نے؟ پھر سے سن لیجیے, ممکن ہے کہ انصاف کریں لیکن کریں گے نہیں آپ. سن لیجیے, یہ مائک میرا کس نے بند کیا؟ اب تجھے کسی نے بلایا؟ یہ دیکھیں, مائک میوٹ کیا جا رہا ہے, دکا دیا جا رہا ہے, گروپ سے نکالا جا رہا ہے. یہ بھی دیکھیں, سن لو. یار بات سن لو, سو نہیں بچو دے دو تننا چو تیرا چو. ملک صاحب یہ بات میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں نے بار بار مطالبہ کیا ہے, لیکن شرط اس بات پہ ہے کہ میں نے یہ کہا ہو کہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے یا یہ شریعت کے خلاف ہے. آپ نے یہ الزام لگایا مجھ پہ. جاہل سن لے, میں کہہ رہا ہوں نا میرے سے. کیا الزام ہے طلعت کا کہ تم نے یہ کہا ہے کہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے, یہ شریعت کے خلاف ہے, تم نے یہ کہا ہے. ہاں جی, طلعت کو ایک منٹ, طلعت کو یہ دکھانا چاہیے کہ ضیاء رسول نے کہا ہے یہ شریعت کا حکم ہے ہی نہیں, یہ شریعت کے خلاف ہے. یہ الفاظ دکھانے چاہیے. ہاں تو یہی بات میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کو میں نے یہی تو بات کی تھی شروع میں کہ ضیاء رسول کا یہ بیان تھا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو حدیث ہے یہ شریعت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, کدھر کہا ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے حدیث؟ کدھر سن کہا تو ہے؟ لینا زاہد اسکانی صاحب, بات تو سنیں. یہ بھائی, موقف تھا آپ ایک کہانی بتا سن تو رہے لینا ہیں. زاہد اسکانی صاحب, ایک بندے کا موقف تھوڑی دینا ہوتا ہے, محترم, انصاف سے کام لیا کریں. سو بندے زاہد خیانت سے اسکانی موقف صاحب دیں گے. بات سن لیں. اب میری بات مکمل سن لیجئے. ضیاء صاحب کے وہ الفاظ کدھر ہیں جس میں ضیاء صاحب یہ کہہ رہے ہوں؟ میں اسی کا جواب دینے لگا ہوں نا. ایک منٹ بھائی, ایک منٹ. ضیاء صاحب کے وہ الفاظ کدھر ہیں ضیاء صاحب یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے, یہ شریعت نہیں ہے کہ جہاں لگا ہو طاعون وہاں بیٹھنا یا باہر والے یہاں آنا. یہ شریعت ہے نہیں اور یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. وہ الفاظ کدھر ہیں؟ جی, یہ ہے ضیاء رسول کا بیان. یہ ہو گیا ضیاء رسول کا موقف. طلعت صاحب کا موقف یہ تھا کہ تم موقف نہیں, طلعت صاحب نے یہ الزام لگایا زاہد تھا. اسکانی صاحب آدھی بات نہیں نہ کرتے, کوئی انصاف کی بات ہے آپ کے اندر. آدھی بات خالی ضیاء رسول کی بات آپ نے سنانی ہے, بات سن بھی لیا, سن تو لو, پھر دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں. بھائی میری بات تو سن لو. ضیاء صاحب کہہ رہے ہیں طلعت جی کو کہ تم نے مجھ پر یہ میں نے ریپیٹ کر دیا ہے, تم نے مجھ پر یہ الزام لگایا ہے. سنو, تم نے مجھ پر یہ الزام لگایا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ شریعت نہیں ہے اور یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. یہ الزام طلعت کا ہے, اس پہ وہ الفاظ دکھائیں کہ ضیاء صاحب یہ کہہ رہے ہوں. جو الزام طلعت نے لگایا ہے وہ الفاظ دکھائیں کہ ضیاء صاحب یہ کہہ رہے ہوں یہ شریعت نہیں ہے اور یہ شریعت کے خلاف ہے. یہ ہے وہ مسئلہ. اب زاہد اسکانی صاحب آپ سن لیں بات. جو آپ ایک بندے کا خالی بیان نہ پیش کریں, دیکھا بات پوری سنیں. شرط کس پہ لگی ہے؟ سن تو لینا زاہد اسکانی صاحب, شرط کس پہ لگی ہے بھائی میں اب اسی طرف جا رہا ہوں, آپ سن لیں آرام سے بات. دونوں کے الگ الگ دو مختلف پارٹیاں ہیں, دونوں کے الگ الگ موقف ہیں. ضیاء رسول کہہ رہا تھا کہ یہ بات نہیں ہے, ٹروتھ سیکر یہ بات نہیں ہے. زاہد اسکانی صاحب پھر آپ ٹروتھ سیکر سن لیجئے, ٹروتھ سیکر آپ آتے ہیں, آپ سن لیجئے, آپ ایک پکے سچے احمدی ہیں, میں کافر ہوں. آپ آتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں یہ کافر, اس نے مسیح کو نہیں مانا, ہمارے نبی کو نہیں مانا. اس کافر نے کل پپو کو ماں کی گالی دی ہے.
माँ की गाली दी है, इसको माँ की गाली दी है, मैं चीख उठता हूँ, काफिर होने के बावजूद मैं चीख उठता हूँ। आप सुन लीजिए, मिसाल देता हूँ ना, मैं चीख उठता हूँ, मैंने पप्पू के माँ को गाली नहीं दी। कब पप्पू के माँ को गाली दी? आप ठीक कहते हैं दी है। सुनो, रायद खान मैं साहब, कहता- सुनो हाँ जी। सुनो, मैं कहता हूँ कि वो ऑडियो पेश कीजिए जिसमें मैंने पप्पू के माँ को गाली दी है। अब आप क्या पेश कर रहे हैं? आप पेश कर रहे हैं कि देखो आसकानी क्या कह रहा है, ये पप्पू बड़ा बुरा इंसान है। ये कोई इंसान है? इसने हमारे खिलाफ बातें की, ये जाहिल है, ये खबीस है, ये गंदा है, कुछ भी मैं कह रहा हूं, आप ये पेश कर रहे हैं। क्या मैंने कहा था उसके माँ को गाली दी थी? यहां पर मैंने खिलाफ बात तो की है, लेकिन शर्त ये लगाए तुमने, एक असली पक्का अहमदी होकर तुम ये कह रहे हो कि पप्पू के माँ को गाली दी है। पेश कर रहे हो मैं पप्पू के खिलाफ बात कर रहा हूं, उसको बुरा भला कह रहा हूं, माँ को तो मैंने गाली नहीं दी। जी, तलत जी ने ये इल्जाम लगाया, जो पक्का एक अहमदी है, मिर्जा जी के मानने वाला है, और उनको न मानने की वजह से देखो हम कितने जलील हो रहे हैं, आप लोग कितने जनाब आला कहां से कहां चांद तक पहुंच गए हैं। वो चांद वाला इंसान कह रहा है इस काफिर को कि तूने ये कहा है कि ये शरीयत नहीं है, ये शरीयत के खिलाफ है। वो अल्फाज पेश करना होगा जो इल्जाम लगाया है। जी, तो ये दोनों मौक़िफ़ जो है ना, ये पेश किए गए जज के सामने। ये जज ने डिसीजन फिर उसके मुताबिक दोनों का मौक़िफ़ सुन के दोनों ने एग्री कर लिया कि जज तक हमारा मौक़िफ़ पहुंच गया, क्योंकि ज़िया ने भी अपना मौक़िफ़ बयान करके और जज ने उसको मौक़िफ़ को रिपीट किया और उस पे ज़िया ने कहा बिल्कुल ठीक है। तो ज़िया भी एग्री कर गया। अब जब मौक़िफ़ दोनों के पहुंच गए, मौक़िफ़ दोनों के पहुंच गए और ज़िया ने ये भी कह दिया बिल्कुल एक मिनट मेरा भाई, मौक़िफ़ पहुंच गया है, तो उसके बाद जज ने डिसीजन लिया। अब आप अच्छा, ठीक है। आप जो आप ठीक है, इख्तलाफ करें, हो उस गया, decision आपका से। मसला हल हो गया, लेकिन जज ने डिसीजन दे दिया, मसला हल हो गया। बाद पैसे भी पे धक्का होंगे। देकर बाहर निकाल के, ना कोई सुनवाई, वो मान नहीं रहा, उसको बंद कर रहा है, बार बार म्यूट कर रहा है, ज़िया को और उसको इनवाइट कहा किया जा गया, रहा वो है खुद कि नहीं तुम आया, भाग रहे लेकिन हो। जज ने रिकॉर्डिंग सुन के डिसीजन देना था। जी भाई जज ने जो टुकड़ा उन्होंने सुनाया और कहा देखो इसका मफहूम है या नहीं, इससे ये नतीजा निकलता है या हाँ, नहीं। तो होगा। तल्लत साहब ने नतीजा ये बात निकलता की, ज़िया रसूल ने कहा कि अल्फाज हैं, मिनी अल्फाज दिखाओ। जज ने दोनों की बातें सुनी, ज़िया रसूल ने एग्री किया कि ठीक है मेरा मौका पहुंच गया, उसके बाद जज ने डिसीजन दे दिया। है। अच्छा, उसने अब मौका recording दो, सुन के अब decision मौका देना दो, था। अब मौका दो, ठीक है, हो गया, आपका फैसला आ गया, हमने देख लिया ये फैसला नहीं, जज का फैसला आ गया। ठीक है ना भाई, हो गया ना भाई, ठीक हाँ। है, ठीक है, ट्रुथ जी, ठीक है जी। राजा साहब जी मलक साहब बहुत शुक्रिया। बात यह है कि चंगेज़ खान ने पहले भी कहा था कि जिस वक्त मलक के हक में फ़ैसला आया तो उस वक्त हमने क्यों नहीं कहा जी पैसे दिए जाएं। बात यह है कि उसी वक्त तलत मलक साहब ने एग्री कर लिया था अमर नज़ीर साहब के साथ कि जी हम 3 जजेस बनाएंगे। वो बात वहाँ पर ही चलती रही। अगर एक बंदा पार्टी एग्री कर जाती है जी कि ठीक है, 3 जजों के बनाने की वजह यही थी कि मलक साहब ने मान लिया था कि जो फैसला हुआ है वो शफाफ तरीके से नहीं हुआ। अब बात यह है पीर साहब कि दुनिया पूरी में कोई पुलिस इंक्वायरी हो, कोई जजमेंट हो, कोई जब नया एविडेंस सामने आ जाता है, उसकी बेस पर पहले वाला फैसला जो है वो बिल्कुल बदला जा सकता है। इस केस में भी यही हुआ है। भगवान के सामने नई रिकॉर्डिंग आई है, उसने इस बेस पर अपना फैसला बदला है। कौन सी रिकॉर्डिंग है, एविडेंस कौन सा है? अब वो जिस बेस पर भगवान ने कल अपना फैसला बदला है, वो है कौन सा, बताए तो सही। उसने जो मैंने बात सुनी है, उसने कहा है जी कि मैंने पूरी रिकॉर्डिंग अब सुनी है जो पहले मेरे सामने पूरी नहीं रिकॉर्डिंग थी। डजंट मैटर। देखें, उसने अल्फाज देखने से ना, अबे उसने ट्रुथ बीच भाई, अल्फाज। ट्रुथ साहब आप खामोश तो रहो, किसी को बात तो करने दो। बहुत कुछ शुक्रिया भाई पीर साहब। आप चुप करें, मलक साहब को पूरी बात करने दें, पूरा मौका दें, उनको रहने दें, उनको पूरी बात करने दें। अब बात यह है कि इनके पास कोई इखलाकी कानूनी जवाज नहीं रहा कि ये अब गालियां दें, ये अब पप्पू के पैसे वापस ना करें। इनको वही जो उसी जज का फैसला जो उसने हेस्ट में किया था, जो पार्टियों को बगैर सुने, बगैर मौका दिए। देखें, एक फैसला तारिक चौहान ने किया था एक दौर में, वो कैसे उसने किया था, दोनों पार्टियों को सुना था, बार बार पूछा था जी कि आपके पास कोई और बात है करने के लिए। उन्होंने जब कहा जी हमने पूरी बात कर ली है, तारिक चौहान रिटायर हो गया,
उधर जाकर उसने दोबारा एविडेंस को परखा और उसके बाद उसने फैसला दिया। इस केस में देखें, जैसे आपने पीर साहब बात की, बार बार ज़िया रसूल का माइक म्यूट किया जा रहा था, उसको बात नहीं करने दी जा रही थी, उसकी जज के सामने बात क्लियर नहीं थी। अब क्लैरिटी के साथ जिस वक्त मुसलमानों ने अपना केस पेश किया, सबको अपनी बात समझाई कि इसमें गलतियां कौन सी हैं, वो गलतियां दुरुस्त हो चुकी हैं और अब मर्जियों के पास कोई इखलाकी कानूनी जवाब नहीं कि अब ये जो पैसे हैं वो पप्पू मलिक को वापस ना करें। हालांकि पप्पू मलिक एक मिनट मौका देना। नहीं, नेक्स्ट आप ही हैं, जट साहब नेक्स्ट आप ही हैं। अब बेशक पप्पू मलिक ने मुसलमानों की दुश्मनी में जो किया था वो किया था, ज़िया रसूल की जिद में किया था, मगर अब मैं ये कहूँगा कि पप्पू मलिक को उसकी रकम वापस होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। एक मिनट पीर साहब मुझे चाहिए सिर्फ उस, चले जट साहब को दे दो। हाँ पीर साहब की हाल है। राजा साहब तो सब बड़ी अच्छी गल की है कि जज ने जो आके हुण फैसला फिर एक बार पढ़ के दसिया। जो जज वो पहली बार फैसला दिता सी उदों भी उन्हें पढ़िया, उदों भी पढ़िया तो हुण भी पढ़िया, लेकिन दोवें असी भी कहने जज गलत सी, तुसीं भी कहते हो जज गलत है, असी हुण भी कहने जज गलत है, लेकिन तुसीं जिहड़ी बना ते कह रहे हो कि असी वो जित गए हैं, कोई नहीं। ਉਹ ਮਲਕ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ 3 ਜੱਜ ਬਿਠਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 3 ਜੱਜ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ जट साहब उर्दू में बात करें, जट साहब उर्दू में बात करें ताकि इनको उर्दू पता चल रहा है सबको। पीर साहब इसलिए कि पहला भी जो जज था वो भी उसने गलत फैसला दे दिया, अब जब वो आया है तब भी उसने गलत फैसला दिया है। अब 3 मलक कह रहा था कि 3 जज, आमिर वजीर भी कह रहा था कि 3 जज बिठाएंगे, वो फैसला देंगे तो वो फैसला माना जाएगा। राजा साहब ऐसे बंगड़े डाल से कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी बंगड़ा डालें, हमने भी डाला, आप भी डाल रहे हो, वो भगवान आया, लेकिन अब 3 जज बिठाने पड़ेंगे, जिसको मर्जी चुन लो, उसके बाद फैसला आएगा कि कौन जीता है कौन हारा है। शुक्रिया पीर साहब। एक अगर पीर साहब इजाजत हो तो एक बात मैं कर दूं। एक मिनट है राजा साहब आप कर अफगानी भाई, मेरे कमेंट ऑफ हो गए, जरा देखें क्या मसला है। आपने सारों के हो गए हैं, सारों के कर दिए हैं, सारों के। वो ये सब मैंने कुछ किया था तो सारों के कमेंट ऑफ हो गए हैं, ये ठीक कोई कर मसला दें। नहीं, चलेगा, कोई मसला नहीं, चलने दो। अच्छा मास्टर जी, ये जो बात देखें, अगर आपने बात करनी है तो इंसाफ की बात करनी है। मास्टर जी, अभी जो इरफान जट ने एक बात की है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं एक तो मेरी बात सुनी नहीं, दूसरी मैं इस पर बात करूंगा ही नहीं करोगे? अच्छा है, पीर साहब 1 मिनट मुझे चाहिए, राजा जवेद साहब की एक बात करनी थी मैंने। कीजिए। राजा जवेद साहब ने अभी बात की कि ये फैसला उसी वक्त ही 3 जजों का हो गया, ये ऐसी बात नहीं है। ये फैसला उसके अगले दिन भी उनकी ब्राड के ऊपर जाके हुआ, क्योंकि हम सारा दिन टिकटॉक पे रहते हैं। ये उसी वक्त ऐसे नहीं हुआ कि 3 जजों की वो बात मानी जाए, जो अभी इन्होंने बड़े आराम से अपने गले से वो तोक उतार दिया राजा जवेद साहब ने कि हम जो जी फैसला उसी वक्त ही हो गया, ये ऐसा नहीं हुआ। ये आमिर नज़ीर साहब की अगले दिन जाके आमिर नज़ीर साहब मलिक साहब के पास गए और उधर 2 घंटे की उनके साथ बहस करके तो उन्होंने फिर ये फ़ैसला मनवाया। और मलिक साहब की ये शराफत थी कि उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे कर लूँगा। हाँ, अगर मलिक साहब के अंदर शराफत ना होती या वो इंसानियत ना होती तो ये कभी भी ये ना मानते और ये इसी तरह अपनी बगले बजाते, जिस तरह आज मुसलमान बगले बजा रहे हैं कि उसने हमारे जो मर्जियों के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया, हमारे पैसे निकालो। मतलब ये कि जब अपनी तरफ वो बाल आई तो रोला डाल दिया कि पैसे निकालो, जब इनकी तरफ थी तो ये सारे चुप करके सो रहे थे। जो आज जो बने हुए हैं ताजदार ख़त्म नबूवत के अलम लेके, जो बड़े कह रहे हैं कि जी हम जी नबी पाक की इज़्ज़त के लिए तो हम जान भी कुर्बान है। उस वक़्त कहाँ इज़्ज़त जाती है, जब अपनी तरफ फैसला आए तो उस वक़्त ये सारे सो जाते हैं। ठीक है, शुक्रिया। अब पैसे लेने की बारी आई है तो सारे कशकोल लेके हाथ में खड़े कि हम हमारे कशकोल में डाल दो। शुक्रिया। अच्छा, एक मैं से थोड़ी सी बात कर लूँगा पप्पू के हक में। राजा जी, ये आपके लिए है, ये देखें। वअसा अन तुहिब्बू शैअन वहुवा शर्रुन लकुम। वअसा
अन तुहिब्बू शैअन वहुवा शर्रुन लकुम, बल्कि पूरी बात यह है व आसा अन तकरहू शैअन वहुवा खैरुन लकुम, मुमकिन है कि एक चीज़ आप उसको नापसंदीदा समझ रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन उसमें भी खैर है तुम्हारे लिए, उसी में जो आप पसंद नहीं कर रहे। वासा अन तुहिब्बू शैअन वहुवा शर्रुन लकुम, और जिस चीज़ को तुम पसंद कर रहे हो दर हकीकत उसमें तुम्हारे लिए बुराई है। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, बात इंसाफ की करनी चाहिए। पप्पू ने जो कुछ किया वो तो लगा हमें कि वो बुरा है और था ही बुरा, लेकिन उसमें खैर थी, उसमें खैर थी। हम पसंद कर रहे थे ये ना करता, लेकिन उन्होंने कहा वो खैर थी। अगर आप पूछेंगे खैर क्या थी, मैं अपने दूसरे टर्न पे बता दूंगा। जी चौहान राजा भाई। जी मलक साहब, पीर साहब, बात यह है पप्पू ने जो किया उसमें खैर में तो वो तो सामने नजर आ गई, वाकई खैर थी, इसलिए कि अब जो असल बात सामने आई है तो तब मैं ये कह रहा हूँ, उस वक्त मरज़ई ये कहते थे कि पहले पैसे दो तो उसके बाद अगली बात होगी। अब अगर ये डिमांड कर रहे हैं 3 जजों की, तो अब ये पप्पू मलक के पैसे वापस करें तो फिर अगली बात शुरू कर लेंगे। उस चौहान वक्त किधर है भाई, नजर नहीं आ रहा, उनको उठाया जाए। चौहान जी, वो कहते हैं जी कि मुझे ब्लॉक कर दिया गया है। किसने ब्लॉक किया? पता नहीं, वो ये कह रहे हैं, अभी लिखा था उनका मैसेज आया था। क्या आप बोले? चेक करें ब्लॉक लिस्ट। मैं देखता हूँ, आप बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने यही इसी इंसाफ पर चलना है तो अब पप्पू के पैसे ये वापस करें और फिर वो पार्टी से बात करें, मुज़ाकरात करें जी कि हमने 3 जज बनाने हैं, क्या करना है या आगे कैसे बढ़ना है। मगर इखलाकी तौर पर इनके पास कोई जवाब नहीं रहा कि ये पैसे वापस ना करें। मेरा इतना सा मौक़िफ़ है बस। बहुत शुक्रिया। अब पप्पू का सुन लीजिए फिर से। वो क्यों खैर थी हमारे लिए? वो इसलिए हमारे लिए खैर थी कि पूरा जो जितनी गालियां वो दे रहा था मलिक साहब, जितनी कस्में खा रहा था कि मैं ये दूंगा वो दे दूंगा, कल जब उन्होंने फैसला सुना साफ इनकार कर दिया, नहीं दूंगा। यानी पप्पू ने खुशी से दी हैं, उन्होंने कहा जब भी मांगेंगे मैं दे दूंगा। कस्में खा कर कह रहा था, बाद में भी कह रहा था कि दे दूंगा, कल जब फैसला आया साफ इनकार कर दिया, नहीं दूंगा। अब डबल फंसे हुए हैं, वो पैसा भी और ये पैसा भी। ये थी खैर उसमें। अब ये तारीख याद रखेगी कि कस्में खा कर कर अपने आप पर लानतें ले लेकर पता नहीं क्या कहा कि मैं दूंगा, वापस कर दूंगा। आप कहते हैं मैं दूंगा ही नहीं। जी अब तो इनको पीर साहब, अगर मेरे बात गलत नहीं है तो अब तो इनको पप्पू के वापस करने पड़ेंगे, प्लस 1000 यूरो देना पड़ेगा, फिर ये 3 जजों के पास बात जाएगी ना, कि मैं गलत कह रहा हूँ? ये 3 जजों की जो बात की है ना इरफान भाई ने, अगर आप मुझसे इसका जवाब। राजा साहब आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया में राजा साहब आपने जिंदगी बिताई। एक मिनट, ये अगर बात आप इसको एड्रेस कर रहे हैं इरफान की, अगर मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं अपने ईमान को सामने रख के उसका जवाब दूंगा, अगर नहीं तो मैं खामोश हूं। क्या मुझसे सवाल था ये? राजा जी क्या मुझसे सवाल था ये? नहीं, मैंने सवाल ये किया है कि अब अगर ये 3 जजों की बात करते हैं तो इनको पप्पू के 500 यूरो और प्लस 1000 ये नहीं करते हैं, ये नहीं। एक मिनट राजा जावेद साहब, नजीर साहब ने किया, आपके आमर नजीर साहब ने 3 जजों का विवेला किया है। नहीं, और मलक साहब ने तस्लीम किया था। एक मिनट, पता नहीं क्या हो रहा है। 1000 यूरो जमा साहब गल करन दियो। चंगेज भाई राजा साहब नु करन दियो। दसो पीर साहब कौन है? करावागा तेनू पीर साहब, तेनू करावागा, गल करो पीर साहब। नहीं, मुझसे सवाल नहीं है ना, मुझसे सवाल नहीं है तो मैं क्यों बात करूं भाई? आप नजर ही नहीं आ रहे चौहान जी, आप नजर ही नहीं आ रहे, बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। पता नहीं क्या चक्कर है। कॉल डालो ना। ब्लॉक वो नजर नहीं नीचे आ रहा, तो ब्लॉक लिस्ट में ये नहीं है, ब्लॉक लिस्ट में नहीं है, मैंने चेक किया भाई। आप कॉल डालो, चौहान जी कॉल डालिए। मुझे किस बेगैरत ने ब्लॉक किया भाई? आप नजर ही नहीं आ रहे बंदे अल्लाह के, आप जरा कॉल तो डालिए। ये पीर साहब खुद, पीर साहब ये खुद ब्लॉक के इसने अपने आप को किया, झूठ बोलता है ये, छोड़े इसको। ब्लॉक क्या? वो ब्लॉक नहीं है, मैंने देखा ना, आप ब्लॉक नहीं है।
लेकिन इधर नजर भी नहीं आ रहे, शायद मुझे नहीं आप मालूम। बाहर निकलकर दोबारा वापस सेंटर हो। हाँ जरा बाहर जाके इसने वापस खुद अपने आप को किया ब्लॉक। एक मिनट, ये देखें ब्लॉक लिस्ट है, ये है ब्लॉक लिस्ट, इसमें बिल्कुल आप ब्लॉक नहीं है, 3 आदमी ब्लॉक हैं, एक वो क्या नाम है, इन तीनों को भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, पता नहीं ये किसने ब्लॉक किए हैं, ये भी तीनों मैंने ख़त्म कर दिए, अब 0 है, कोई भी नहीं है। वो कहते हैं मैं कार्ड डालता हूँ तो मंजूर नहीं होती। ये क्या चक्कर है, वल्ला मुझे नहीं मालूम चौहान जी, बिल्कुल नहीं मालूम कि क्या चक्कर है। पीर साहब इन्होंने खुद ब्लॉक किया अपने आप को, क्या हो गया आपको? मुझे नहीं मालूम, मुझे ये नहीं मालूम। चले मैं इनको भी जो ख़त्म है उनको भी ख़त्म कर देता हूँ, अब कुछ भी नहीं है। बहरहाल क्या इशू है चौहान जी मुझे नहीं मालूम, आप ब्लॉक लिस्ट में नहीं हैं। आप नजर आ रहे हैं चौहान साहब, आप नजर आ रहे हैं नीचे, किधर है? आप चेक करें लिस्ट, मैंने अभी देखा है उनको। मैं नहीं देख रहा, ये है मेरे सामने लिस्ट। मुझे फिर मॉडरेटर बनाए, मैं उनको उठाता हूँ, मैं देख सकता हूँ उनको। अच्छा, कोई और अगर पीर देख, साहब ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं इस बंदे को बना के मॉडरेटर। अल्लाह अकबर। क्यों ये तो ऐसे हरकत नहीं करेंगे, कभी भी नहीं पीर साहब, ना तो पहले नहीं कभी किए ना। किसी बच्चे को बना दे पीर साहब, इसको ना बनाना। इसकी बातें सुन रहे हो कि पहले 500 दो, फिर 1000 दो, फिर 2000 दो। कितना मजा आएगा मुझे। अच्छा अभी आप देखें, आप देख रहे हैं मैं चौहान जी को? जी बिल्कुल देख रहा हूँ। मुझे क्यों नजर नहीं आ रहा? आप उठाइए। मगर उनकी आईडी प्राइवेट है, मैं उठा नहीं पा रहा। मैं देख ही नहीं रहा उनको, आप कहाँ से देख रहे हैं? मैं तो उसको? देख रहा हूँ, देखें जो लिस्ट मेरे सामने है वो मैं हूँ, उसके बाद जायद जमील है, रॉन्ग नंबर, चंगेज खान, चौहान, असद मलक, इरफान जाफरी, पीर साहब कभी कभी ऐसे होता है बंदा खुद ही नहीं ऊपर आता। ये आधा बंदा बैठा हुआ है ऊपर, आधा नहीं है, ये इसका नेट नहीं आ रहा, इसने खुद अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है। ये जो चौहान साहब है ना, मुझे क्यों नजर नहीं आ रहा हुआ? अजीब है, ये क्या है? पीर साहब अगली ब्रांड लगाएंगे तो आ जाएगा, कोई बात नहीं, रहने दे, कोई मसला है। चले पीर साहब आपने जितने मॉडरेटर बना लिए ना, तो ये भी आईडी आपकी चंद दिन नहीं रहेगी, ये मेरा फतवा आप नोट कर लीजिएगा। कितने मैंने बनाए हैं आपको मालूम है? जितने भी बनाए हैं ना, जो आपने नाम लिए हैं, तो ये आईडी आपकी रहेगी नहीं जल्दी। राजा जावेद हैं, राजा जावेद हैं, रोमा साहब हैं, ये मुजद्दिद वक्त की आईडी मुस्कानी साहब वो मेरी ब्लॉक उन्होंने कर दी आईडी, ये फिर कोई लिखा हुआ है 6 जून तक ब्लॉक हो गई। ये कोई फिर कर रहा है, ये क्या तरीका है भाई? फिर शिकायत चाहिए। ये पीर साहब आपको पता नहीं है, मुसलमानों का पता नहीं आप किधर ये आपने मिर्जाई टाइम बगैरत करते हैं, मिर्जाई बगैरत मुझे ब्लॉक करते हैं। ये पीर साहब ये बगैरत ये बगैरत बैठा हुआ मिर्जाई है, मुझे ये ब्लॉक खुद ये करती है। बगैरत तुम हो, टिकटॉक बहुत ही बगैरत कौम है ये मिर्जाई, तुम बहुत ही सबसे बड़े बगैरत कौम। बगैरत तुम हो। बड़ी बगैरत पीर कौम साहब है। टिकटॉक ने आईडी ब्लॉक की है इसकी, ये किसी ने नहीं की है। मिर्जाई ये बगैरत बगैरत मुझे झूठ बोलता है, पहले मुझे ये मिर्जाई बगैरत झूठ बगैरत बोलता ने है। उतारा, फिर मिर्जाई बगैरत बगैरत झूठ ने बोलो, ब्लॉक किया। बगैरत झूठ बोलो मत। एक मिनट इरफान भाई रंडी के इरफान बच्चे, भाई ये बंद करो। इरफान भाई एक मिनट, ये जो तारक चौहान साहब एक मिर्जाई पीर इसकानी साहब, एक मिनट, पीर इसकानी साहब ने किसी भी अहमदी को मॉडरेटर नहीं बनाया। अच्छा आप ये समझ आई? किसी भी अहमदी को नहीं बनाया। ये टाक मास्टर जी कौन है? ये टाक मास्टर जी अहमदी हैं, ये आपके दोस्त हैं, ये तो इस लिस्ट में नहीं आते। अभी झूठा पड़ गया चंगेज खान, तुम तो मिर्जाई। फिर इसका मतलब है कि टाक मास्टर साहब बगैरत है। ये आप ये टाक मास्टर साहब ने तो नहीं या किया, तारक मुझे पहले कह रहे तारक साहब थे, आप आपको शर्म करना चाहिए। आप टाक तारक मास्टर जी को चौहान गाली साहब दे रहे हैं। को, ये टाक मास्टर साहब को गाली दे रहे हैं आप फिर। टाक मास्टर साहब तो पहले ही कह रहे थे तारक चौहान को उठाएं, किसी और ने किया हुआ ब्लॉक। मैंने आपको उतारा, आपने टाक मास्टर जी को गाली दी। मुझे दे देते, मैं आपको नहीं उतारता। चंगेज जी मैं आपको बुला रहा हूँ ऊपर, आप आपके माजरत कीजिए। उन्होंने नहीं दी जाहिर खान साहब। बेगैरत क्या है? बेगैरत गाली नहीं है। नहीं, वो उनको कह रहे थे आप कि लोग सब गैरतमंद हो, बस बेगैरत लोग हम लोग रह गए। ओहो नहीं, उनको कहा था कि ये वो कह रहे हैं, तारिक चौहान साहब कह रहे हैं। अस्कानी साहब देखें, आपने अभी सारी बात की है ट्रुथ सीकर से, ये नहीं जवाब दे सका कि भाई बात क्या करनी थी।
ये कोई मुकाबला कोई और तो ना थे, वो ये तो अल्फाज आपकी दिखाने थे। मेहरबानी है ना कि मैं वो जवाब दे जो जज है क्या उसने वो अल्फाज दिखाए? वो कहीं नहीं दिखाए। मैंने तो वो आपको फैसला बताया, कैसे आ गया? ये ऐसे बेगैरत है, ये अगर गाली मिर्जाई देना हो तो मुझे बेशरम दे है। दो। ये मैंने ना तारक चौहान साहब ने ये कहा था, पीर इसकानी साहब, तारक चौहान साहब ने कहा ये था गैरत कि ये बेगैरत बगैरत छोड़ दीजिए, मरज़ई आप ने तो मुझे बात उतारा है। ये पीर इसकानी साहब, ये तारक चौहान साहब ने कहा किसी बगैरत मरज़ई ने मुझे उतारा। अच्छा चंगेज खान, तुम बताओ कि फैसला किस बात पे होना था? बताओ। हो गई ये बात किसी आपकी। मिर्जाई को इसके मुतल्लिक नहीं पता। मैंने इतने तारक झूठे लोग चौहान हैं। साहब, अब जितना दूसरी तरफ आप आप अहमदियों खड़े के हो। बारे में जितना आपने अहमदियों के बारे में बुग़्ज़ अभी थोड़ी देर पहले तकरीर करके निकाला था, तो आपके साथ तो बात करना और कलाम करना और फजूल भाई है मेरे तुम ना कलाम कर, दलानत पाना में तेरे ते तो निदा ने भी पाती, फायजा ने भी पा दी, सारे ने ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ लानत ही पाई हुई है। बस यही गलाजत है आपके पास, और कुछ और ये नहीं है। गलाजत यही मेरी तो गलाजत नहीं है, तुम्हारे चहेते खलीफा जी के बच्चे हैं जो भाई ये गलाजत तुम पे डाल रहे हैं। मैंने तो नहीं कौन डाली। से नबी पाक ने तुम्हारे तो खलीफा ये जी के कहा बच्चे डाल कि रहे अगर हैं। किसी के नबी पाक ने ये और कहा, तुम्हारा अगर खलीफा किसी की कह रहा है, तुमने खुद अब पेश नबी किया था। पाक हजरत मोहम्मद यानी मुस्तफा खलीफा सल्लल्लाहु जो अलैहि है वसल्लम उसको का पता ये है कि फरमान ये है कंजरखाना कि चल अगर रहा तुम है। किसी की और किसी की चंगेज इज्जत को मिर्जाई, उछालोगे तो खुदा तुम्हारा खलीफा ताला तो खुद कह क़यामत रहा के है दिन कि तुमने तो खुद तुम्हारी पेश किया इज्जतों था। को कोई शर्म आया तुमको है कि तुम्हारा यार, खलीफा जना करवा रहा है? नहीं, मेरी बात सुने, तुम्हारा खलीफा जना करा रहा है, कह रहे तुमने तो खुद पेश किया चले था। भोंक ये है तुम्हारी मिर्जाइयत की ये पीर साहब, ये क्यों ये कुत्ते को छोड़ दिया पटा समेत? ये जो हमारा कुत्ता है, इसको क्यों भोंकने की तुम्हारा जरूरत है? खलीफा ये तुम्हें कह रहा है ये कि तुमने तो खुद पेश किया था। तारक चौहान साहब खलीफा की कहंदा दसो खलीफा कहता है कि तुमने खुद पेश किया था। करो। खलीफा कहता है तुमने खुद पेश किया ਜਿਹੜੀ था। ਬੱਚੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਮਰੀਜ਼ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੁਮਨੇ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ किया था। ਨਹੀਂ, ਹੋਲਡ ਔਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਮ ਕਰਿਆ खलीफा की ਕਰੋ। मर्जी नाल जना हो रहा सी शर्म करे और और निदा को कह रही है तुम्हारे कांधे पे चढ़ कर तुम्हारा पोता साला और तू उसे जना कर रहा है। ਇਹ ਹਾਲਤ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਮਾਤ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੈਂ? ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੀ ਤੂੰ, ਇਹ ਅਖਲਾਕ ਤੇਰਾ ਵਧਿਆ ਜਮਾਤ ਛੱਡ ਕੇ। तो अखलाक और भाई ਆ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ। तेजी केड़ी जमात पढ़ी है तो उस पे लानत पाई है मिर्जाइयत ने। ਪਰ ਮੇਰਾ ਜੰਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਦ ਅਖਲਾਕ ਉਹ ਵੀ ਲਾਨਤ। ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਲਈਦਾ। अच्छा ਆਪਣਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। आम इंसान साहब ਹਾਂਜੀ, सुन लीजिए, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, टैक्सी से अच्छा आम इंसान भाई, आपको मालूम है कि शर्त किस बात पे लगा था? हाँ जी, बताइए। मैंने बहुत सारा, उन्होंने कहा था कि मैंने ये नहीं कहा कि मिर्जा साहब ने कोई गैर शरई हुक्म दिया है। नहीं, हाँ जी। गलत 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 क्यों? मैं बताता हूँ। हाँ जी बताएं। क्या नाम है, तलत जी ने इल्जाम लगाया था, इल्जाम हाँ तुमने ये कहा है ये शरीयत नहीं है और ये शरीयत का हिस्सा नहीं है। तुम ये कह रहे हो कि तुम इसको शरीयत नहीं मानते, तुम इसको शरीयत नहीं मानते। ठीक हो गया, अल्फाज का हेर फेर, बात सेम ही जो मैंने की, जो आप कर रहे हैं। नहीं, कोई फर्क नहीं। नहीं फर्क है। मैं अगर ये कहूँ कि तुम कहते हो नमाज पढ़ना शरीयत नहीं है, तुमने अभी बात हो रही है भाई, तुम तो वो इंसान हो, तुमने ये कल कहा था कि नमाज शरीयत का हिस्सा नहीं है, नमाज पढ़ना शरीयत नहीं है। अब मैं आपको पकड़ता हूं कि मेरे वो अल्फाज दिखा दीजिए कि मैं ये कहूं, मैं ये कह रहा हूं कि नमाज शरीयत का हिस्सा नहीं है, आप कुछ और पेश कर रहे हो। शरीयत नहीं मानता मिर्जा जी, इसको सुन लीजिए। मैं ये कहूं कि तुमने कल आकर यहां कहा था अस्कानी साहब नमाज पढ़ना शरीयत नहीं है, ये शरीयत का हिस्सा ही नहीं है। अब आप कहें कि भाई मेरे अल्फाज दिखा दीजिए कि मैंने कब कहा हो कि ये शरीयत नहीं है। आपके पास वो ऑडियो है? एक मिनट, हाँ मैं आपको मिसाल दे रहा हूं क्योंकि वो बात कुछ ऐसी बारीक है हर आदमी उसको समझ नहीं रहा। सुन लीजिए, आप इधर आते हैं मेरे पास। पीर साहब
इजाज़त मैं चाहूँगा, खुदा हाफिज़ मेरी तरफ से, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी खुश आपकी, रहें। आपने टाइम दिया बात करने का। खुश रहें। लव यू पीर साहब। अगर ज्यादती हुए मैं माजरत खा हूँ, गाली गलोच मत कीजिए। नहीं 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 खासकर नहीं नहीं, लव यू मासर पीर को कुछ साहब। नहीं और कह सकते, टाकमा हम काम साहब, करते हैं उसको। ये टाकमा साहब, मेरा कतन आपकी दिलआज़ारी करने का नहीं था मकसद। मैंने सिर्फ तारक साहब ने जो बात कही थी वो कहा था कि वो बात ना करें, क्योंकि मुझे पता है सिर्फ एक ही अहमदी है पीर साहब के। और जा रहे हैं तो चले जाओ, आप मजीद तकरीर जरूर करनी है, जाओ। भैया आप अच्छे आदमी हैं, चंगे यार चीज़ हैं आपसे। इसकी दुम पे कौन पैर रखता है, ये कुत्ते की। एक मिनट, फिर गाली देकर तुम्हारे खलीफा जानी ने रखा हुआ मेरी दुम। बस एक मिनट। अब आराम से, आम आदमी, आप बहुत जुबान पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपका दिल ठीक है, आपकी गुफ्तगू में सुनता हूँ। देख लीजिए, मैंने अभी तक कुछ कहा, अभी तक मैंने कुछ कहा। मैं आपको ये गवाही दे रहा हूँ ना, मैं आपको कई सालों से जानता हूँ, आप भी जानते हैं। आप कंट्रोल नहीं करते, लेकिन आपका दिल बुरा नहीं है। अब सुन लीजिए, आप इधर मेरे पास आते हैं, मैं आपको ये कहता हूँ कि देखो, तुमने ये कल कहा था मेरे ब्रोड पे, कल तुम आए थे, तुमने ये कहा था कि नमाज पढ़ना शरीयत नहीं है, ये शरीयत का हिस्सा नहीं है। अब आप शरीफ आदमी, आप जो है एकदम चीख उठते हैं। अस्करी मैंने ये नहीं कहा, मैं कहता हूँ तुमने कहा। अब देखो मैं इल्जाम क्या दे रहा हूँ कि तुम ये कहते हो नमाज पढ़ना शरीयत नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने ये कहा है। आप चीख उठते हो, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं कहता हूँ नहीं कहा, फिर आप मुझे ये कहते हैं वो अल्फाज दिखा दीजिए। अब मैं अल्फाज क्या दिखाते हूँ? मैं अल्फाज ये दिखाता हूँ कि मिर्जा जी ने कहा है कि ये शरीयत नहीं है। ये अलग हुआ या नहीं हुआ भाई? नहीं ना, उन्होंने ये तो नहीं कहा। सुन तो, आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? ये बड़ा बारीक बात है। मैं आपको कह रहा हूं कि तुमने कहा था, तुम नहीं मानते शरीयत इसको कि नमाज पढ़ना शरीयत है। तुम नहीं मानते, मैं तुम पर यह इल्जाम लगा रहा हूं। तुम मुझे कहते हो अल्फाज दिखा दो, मैं अल्फाज दिखाता हूं, वो तुम्हारे ही हैं। तुम क्या कह रहे हो? शरीयत ये नहीं, इसको मिर्जा जी शरीयत नहीं मानता। फर्क हुआ या नहीं हुआ? जब आपने ये कहा था कि मिर्जा जी इसको शरीयत नहीं मानता, ये एक अलग बात है, लेकिन मैं ये कहूं कि तुम इसको शरीयत नहीं मानते, जमीन और आसमान का फर्क है या नहीं? ये है वो बात। फिर सर देखें जी, जब उन्होंने सवाल पूछा ना ज़िया रसूल ने, उसने कहा कि पूरी वो ऑडियो सुने। उन्होंने कहा आप कहते हैं कि मिर्जा साहब ने शरीयत के बाहर कोई काम नहीं किया। बात सुने मेरी तरह, मिर्जा जी ने ना, कोई मिर्जा जी ने कोई ऐसी शरीयत नहीं घड़ी, आप कहते हैं। ये मलिक साहब पर इल्जाम लगा के आप कहते हैं मिर्जा जी ने कोई नई शरीयत नहीं घड़ी। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल नहीं घड़ी। उन्होंने कहा अगर अल्फाज ना हुए तो कुरान हदीस में मफहूम जरूर होगा उसका ना। साहब ने आगे से ये कहा है। तो फिर उन्होंने वो जो ताउन वाला है 1901 वाला वाकया वो रखा कि ये मुझे शरीयत में से दिखाएं, कुरान या हदीस में से। इसका मतलब है कि ज़िया रसूल ने इल्जाम लगाया मिर्जा साहब पर कि उन्होंने ये नई शरीयत घड़ी है कि टाउन में कोई अपना इलाका छोड़ के ना जाए, जो ना ही बाहर से कोई आए ना कोई इधर से कोई उधर जाए ना, क्वारंटीन कर ले अपने आप को, जहाँ पे रहे वहीं पे रहे ना, कि बीमारी ना फैले। तो ये मुझे शरीयत में से दिखाओ। तो फिर उन्होंने वो बुखारी की हदीस दिखाई। इसका मतलब है ज़िया रसूल इल्जाम लगा रहा है कि ये मिर्जा साहब ने अपने पास से बात की है, इसमें इस बात का कुरान और हदीस में कोई सबूत नहीं है। जब वो बुखारी की हदीस आ गई है तो ज़िया रसूल झूठा पड़ गया। ये देखो ये तो शरीयत में है, ये मिर्जा साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की जो शरीयत से बाहर हो। अच्छा, अभी ये बात जितनी भी आप कर रहे हैं, इसमें कौन सी चीज गलत है मुझे ये बता। मैं बताता हूँ ना, मैं बता देता हूँ। अभी आपको बताया मैंने, फिर आप नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूँ कि कल तुमने मेरे ब्रोड पे ये कहा था, आम इंसान साहब, तुमने कल मेरे ब्रोड पे ये कहा था कि नमाज पढ़ना शरीयत नहीं है। तुमने ये कहा था, तुम मिर्जा जी नहीं हो, तुम मिर्जा जी नहीं हो, तुमने ये कहा था, तुमने मैंने कहा एक मिनट, अरे भाई एक मिनट, तुमने ये कहा था कि शरीयत नहीं है नमाज पढ़ना, बिल्कुल नमाज पढ़ना शरीयत नहीं है, ये तुमने कहा था। फिर आप क्या कहते हो मुझसे, क्या असकानी जी मैंने तो ये नहीं कहा था,
मैंने तो ये नहीं कहा था, आप ये कह रहे हैं। मैं कहता हूँ नहीं, तुमने ये अल्फाज कहे हैं कि शरीयत नहीं है नमाज पढ़ना, फिर आप मुझे कहते हैं ठीक है, मेरी और आपकी शर्त लग गई, मेरे वो ऑडियो दिखा दीजिए कि मैंने ये कहा हो कि नमाज पढ़ना शरीयत नहीं है। ये तुम कह रहे हो, अभी मिर्जा जी को भूल जाइए। अब मैं क्या करता हूं, मैं आपकी ऑडियो दिखा देता हूं जिसमें आप ये कह रहे हैं कि मिर्जा जी ने कहा है, मिर्जा जी ने कहा ये नमाज पढ़ना शरीयत नहीं है। ये तो अलग बात हो गया। तुमने मैं तुम पे इल्जाम लगा रहा हूं ना, मैं इस पर मुजरिम हूं क्योंकि मैंने तो तुमको कहा था, तुमको ये कहा था कि तुम ये कह रहे हो नमाज पढ़ना शरीयत नहीं है। आप कहते मेरे अल्फाज दिखा दीजिए, ये इल्जाम अभी आप पर है, लेकिन आप दिखाते, मैं दिखाता क्या हूं, मैं दिखाता ये हूं। पीर साहब ये एक मिनट, अब आप समझ ही नहीं रहे इस बात को, बिल्कुल नहीं समझ रहे। मैं समझ गया, मैं बिल्कुल सही तरह समझ गया हूँ। क्या जब आप मैं आप पर इल्जाम लगा रहा हूँ ना कि नमाज शरीयत में नमाज पढ़ना नहीं जायज, हाँ। इसका मतलब है मैं समझता हूँ तो कह रहा हूँ ना। अगर कोई बंदा ये कहे कि आप कह रहे हैं कि मलक साहब आप कह रहे हैं कि मिर्जा अरे भाई मैं फिर ने एक कोई नई शरीयत नहीं गढ़ी, अरे भाई इसका मतलब है यू ट्राइंग टू प्रूव इट कि मिर्जा साहब ने कोई शरीयत नहीं गढ़ी है, इसका ये मतलब है। नहीं, मिर्जा जी को याद क्यों ला रहे हो? जब मैं कहूंगा ना मिर्जा जी को क्यों ला रहे हो, परेशानी तो इस बात की है, मिर्जा जी ही का देखिए, मसला है। मिर्जा ये जी यार नहीं को मानते, ना सुन कोई लीजिए। नबी है ना ही मलक साहब को नबी है, ये बात मेरी बात समझे। सुनिए। ये मिर्जा जी बात ही सुनिए। का मसला है। यार रसूल की भी ना- तो आपको ना- कौन वैल्यू देता है, क्या हैसियत है हाँ, उसकी? ठीक है, ये हम हाँ। जानते हैं कि मिर्जा जी ने शरीयत में यहां पर बिगाड़ किया, लेकिन आप मुझे ये कहो कि तुम नहीं मानते इसको, बात तो ये है। तुम ये कहो, मुझ पर ये इल्जाम लगा लो आसकानी, तुम ये कहते हो कि नमाज पढ़ना शरीयत ट्रैफिक- नहीं है। मैंने कब कहा? पीर साहब मैंने कब कहा? आप मुझे नहीं अंडरस्टैंड कर रहे। अब मैं अगर किसी पर कोई इल्जाम लगाऊं और पूछूं कि तुम्हारे अकाबर ने कभी कोई शरीयत नहीं गढ़ी है कि नहीं गढ़ी, आप कहते हैं कि जो आप मानते हैं कि नहीं गढ़ी, तो फिर आप इल्जामन एक उनका रखते हैं कि ये देखें ये नई शरीयत गढ़ी गई है, ये कहा गया है। जब वो प्रूव हो जाता है कि ये नई शरीयत नहीं गढ़ी, ये बुखारी की हदीस है, तो इससे क्या मफहूम निकलेगा, ये मुझे बताएं। यार सुन उसकी लीजिए। क्या हैसियत है कि उसने ये कहा कि नहीं कहा, उसने सुन तो इल्जाम लीजिए। लगाया मिर्जा साहब पर। सुन जब लीजिए, उसको रॉन्ग प्रूव कर दिया गया तो अब हेरा फेरी शुरू कर दी यार, सुन लीजिए। अजीब बात है। सुन यार लीजिए। रसूल की बात में कौन शर्त लगाता है? एक मिनट यार सुन रसूल लीजिए। तो का झूठा इंसान है। या सुन लीजिए। अमर नजीर की जो बात में कौन लगाता, वो तो कोई बगैर पैदे के लोटा होता ना, वो भी ऐसे नहीं घूमता जैसे वो घूमता। अच्छा आप सुन तो लीजिए भाई, सुन तो लीजिए। बात यह है, मलक जी ये कहते कि तुमने कल ये कहा है कि मिर्जा जी ये कह रहे हैं, मिर्जा जी नहीं मानते इसको शरीयत, तब तलत जी सही होते। तलत जी क्या कह रहे हैं, तुम इसको शरीयत नहीं मानते, तो वो तो मानता है, वो कह रहे हैं मिर्जा जी नहीं मानता। तलत जी कहते तुम नहीं। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, अब इस बात को अच्छी तरह से सुन लीजिए। ट्विस्ट नथिंग एल्स, मैं बहुत अच्छी तरह इसको जानता हूँ। क्या जब जानते हैं? बंदा किसी पर जब यार फूल मिर्जा साहब पर एक मिनट, यार बात सुन लो, सो नहीं बच्चों देखो तिन्ना चो तेरा जो मलक साहब, ये बात मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने बार बार मुतालबा किया है, लेकिन शर्त इस बात पे है कि मैंने ये कहा हो कि ये शरीयत का हुक्म नहीं है या ये शरीयत के खिलाफ है। आपने ये इल्जाम लगाया मुझ पे। जाहिल सुन ले, मैं कह रहा हूँ ना मेरे से सुन। आपने अभी ये इल्जाम मलक साहब लगाया कि मैंने ये कहा था कि ये शरीयत का हुक्म नहीं है। पिटनियां होना लता ते भार पाना। सुनो भगवान साहब, आखिरी क्या अल्फाज हैं? अगर इन जिया के अल्फाज क्या हैं? जिया ये कह रहे कि तुम सुन तो लो भाई, सुन तो लो। तलत ने इल्जाम लगाया किस पे? जिया रसूल पे, कि तुम इसको शरीयत नहीं मानते। तुम, वो तो मानता है, मिर्जा जी नहीं मानता, एक अलग बात है। वो कह रहे हैं मैंने ये कहा कि मैं नहीं मानता, किधर है वो दिखाओ कि वो कहता कि मैं नहीं मानता इसको। ये असल बात है, असल बात तो ये है, क्योंकि आप इसको नहीं समझ रहे। मुश्किल तो ये कि आप इसको नहीं समझ रहे। डेफिनेटली नहीं मानता, नहीं
डेफिनेटली यार रसूल इसको शरीयत का ऐसा नहीं मानता था। सुन तो लेना पीर साहब, मेरी भी बात मानता था, इसीलिए उसने हदीस लगाकर गलत साबित किया। अगर यार रसूल उसको शरीयत का हिसाब मानता होता, डेफिनेटली वो ये हवाला ना लगाता, वो लगाता 1907 वाला हवाला कि इस पर डिस्प्यूट होगा। जब अगर आप ये कहेंगे कि आप हवाला भी लगाए और मिर्जा साहब पर इल्जाम भी लगाए, ये गैर शरई काम किया है, इसका मतलब या तो आप दजल कर रहे हैं, अगर आपको पता था, या तो आप दजल कर रहे हैं, या आप उसको आप नहीं मानते शरीयत का हिस्सा है। ये दो चीजें हैं। अगर आप मानते हैं तो आप हवाला नहीं लगा सकते, अगर आप नहीं मानते तो इसलिए लगा रहे हैं। देयर इज अच्छा। नथिंग एल्स। दो एक मिनट, पॉइंट है, याद एक मिनट रखना। भाई। अगर तो वो मलक साहब को फंसाना चाहते थे कि उनके पास ये हदीस नहीं होगी, वो मुशर्रह दे दी, या तो दजल कर रहे हैं, या आप उसको शरीयत के साथ नहीं मानते, इसके अलावा कोई बात नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको तरीका बता देता हूँ, तरीका आपको समझा देता हूँ। भले मैं आप और आपका मैं खैर ख्वाह हूँ, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ बात क्या है। फिर साहब मैं वो बात करूंगा ना, मलक साहब की बात करूंगा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, मैं उस पर बात करूंगा अब आप जो सुन मैंने लीजिए। समझा उससे। अब आप या सुन लीजिए। दजल है, या अब आप मलक सुन साहब को लीजिए। फंसाने की, या नहीं मानता। दो आप बातें हैं, आप सुन इसमें लीजिए। तीसरी बात तो नहीं है। हाँ जी, आप बताएं। आप सुन लीजिए। मैं सुन रहा हूँ। जब क्या नाम है, ज़िया रसूल ने ये बात कही थी कि मिर्जा जी ने नई शरीयत गढ़ ली है और मिर्जा जी ने इसको नहीं माना है, नहीं माना है कि जहाँ मिर्जा जी इस चीज़ को नहीं मानते कि जहाँ ताउन लगी हो वहाँ रहना और बाहर के लोग ना आए। आपने ये दिखा दिया, हदीस भी दिखा दी, देखो ये शरीयत भी है और मिर्जा जी की इबारत भी ये है। मिर्जा जी तो यही कह रहे हैं, आप क्यों कहते हैं कि मिर्जा जी नहीं मानते? आपको ये कहना चाहिए था। फिर क्या करता वो, जो उन्होंने जो है एक वो क्या कहते हैं वो हमारे यहाँ जानवरों को पकड़ने के लिए ना खेतों पे हमला करते हैं, गीदड़ वगैरह, ये बहुत बड़ा हम लोग कहते हैं तल्क, पता नहीं आप लोग क्या कहते हो। वो उसके ऊपर कुछ रखा जाता है और जहाँ से जानवर आता है ना तो वहीं पर उसको रखा दिया जाता है, वो लोहे का होता है। जब वो जानवर अपनी गर्दन डाल देता है अंदर आने के लिए, सीधा वो कड़क से उसको पकड़ लेता है। अब वो पूरे दिन वहीं पर, हाँ हम खिड़की कहते हैं उसको। हाँ खिड़की, हम लोग कहते हैं तल्क। अब उसने पीछे वो तल्क रखा हुआ था, वो खिड़की रखा हुआ था। ये जो खिड़की है ना, वो फिर किसी के काबर पर इल्जाम लगा के खिड़की नहीं लगाते। खिड़की सीधी लगनी है। अब सुन तो लो, सीधे लगना पीर साहब, ऐसे नहीं होगा। सुन तो लो, आपने ये साबित किया ना, क्योंकि मिर्जा जी ने क्या किया हुआ है, हेरा फेरी की हुई है। एक जगह पर ये लिखा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल ये लिखा हुआ है कि ये शरीयत है, नबी ने फरमाया है कि ताउन लगी हो रहो और बाहर के लोग नहीं। लेकिन बाद में इसके बाद फिर कहा है कि जहां ताउन लगे भागो वहां से। उसका क्या करेंगे, वो कहां से? मैं बताता हूँ। बताइए बताइए। ये कोई ऐसी बात साइंस नहीं है जो समझ ना आ सके ना। जी जी। अगर ज़िया रसूल सवाल ऐसे रखता, ये वो देखें, वो तो कल का रखा हुआ था ना। अब पीर साहब भाई वो तो फंसाने के लिए रखा हुआ था। पीर साहब फंसाने के लिए फंसा, उसी वक्त फंस जाना था। ये क्या बात हुई? ये देखें, उसको कहता ये बुखारी की हदीस है, उसमें ये लिखा है, ये मिर्जा साहब ने उसको कोट किया हुआ है, उसके मुताबिक किया। ये आगे जाके ये देखो साथ में रखता, बुखारी की हदीस ना मांगता, खुद रखता बुखारी की हदीस। ये शरीयत का हुक्म है और ये जो है मिर्जा साहब ने शरीयत के खिलाफ हुक्म दिया। इसको बताओ, आप फिर मजा आना था। अभी मजा चकाओ ना हमें। हाँ अभी आप अभी हमें मजा मैं चकाओ। बताता हूँ ना। हाँ, एक जगह अब वो हुक्म देखो क्या है, किसका है, मिर्जा साहब का है या अंग्रेज का है? अब सुन तो लीजिए, 1907 वाला हुक्म जो है वो मिर्जा साहब का है या अंग्रेज का है, ये बताओ। हाँ हाँ, तो आप यही कहते ना कि किधर है वो स्कैन। यही तो यहाँ पर चौहान ने कहा, जिसको आप गालियां दे रहे हैं। चौहान कहते हैं जो छुपाया हुआ मैंने तो कोई गाली नहीं दी चौहान, तारक चौहान साहब, मैं तन को गाल कटी है। सुने, नहीं आप नहीं, मैं ऐसे दूसरे। अच्छा, चौहान ने यही कहा कि वो इक्तिबास किधर है जिसमें मिर्जा जी ने हुक्म दिया हो कि निकलो। तो तलब तो आप लोगों को वो करना चाहिए था, ना कि डंडोरा। नहीं, मिर्जा साहब ने कोई हुक्म नहीं दिया निकलो का। हाँ तो नहीं दिया आप कह रहे हैं, अभी मेरे सामने कह रहे हैं। उसको तो नहीं कहा, उसको तो था ही नहीं, लेकिन मुझे तो पता है वो क्या है।
मुझे तो वो पता है क्या, जी मुझे तो पता है वो क्या है उसका। जब हुकूमत वक्त ने कहा है तो मिर्जा साहब ने कहा ये भी अच्छे ठीक है, अगर क्योंकि आपको डिफरेंट पता है, तरीके हो सकते हैं अगर आपको क्वारंटाइन पता के है, लिए। आप अगर अगर आप जंगल में चलो जाओगे तो राणा साहब, अंग्रेज का हुक्म है, तो राणा आप जी, चले जाओगे तो आपने आपको क्वारंटाइन कर लोगे। हाँ जी, हाँ जी, राणा जी, हाँ जी, हाँ ये जी, हाँ अंग्रेज जी। का हुक्म था, ये कर दोगे वो कर दोगे, हवाला दो, किधर है, पढ़ लेते हैं तुम्हारे सामने, दो हवाला। आप खुद ने करो, मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ, कल देखा? का ड्राइव करके जा रहा हूँ। यही तो बात है ना। 1907 का हवाला मैं दे दूंगा, वो मिल जाएगा हवाला मुझे, वो ऐसी दिखाओ, कोई बात नहीं है। दिखाओ, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, मैं ओए अभी तो यार मैं ड्राइव कर रहा हूँ, फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मैं कार में हूँ, भाई तो देखे, दे दूंगा हवाला। वो कोई देखिए, ऐसी बात है, वो मैं बता देता हूँ, वो मिर्जा साहब नहीं है, वो अंग्रेज का हुक्म था, मिर्जा साहब दिखाओ ने उसकी ना, तायीद की है बस। वो दिखाओ ना भाई, वो दिखाओ, उसमें तो सच्चा और झूठा इंसान साबित होता है, उसमें असल बात तो उधर है, उसको छोड़कर हाँ जी, आप लोग कहीं और जाकर लड़ाई लड़ रहे असल हैं। बात तो बाद में पेश की ना, पहले गजल किया गया उसी पे फंसाने के लिए। अगर इसको पता था, अगर नहीं पता था तो वो गेम डाल रहा था, उसको खुद ही नहीं पता था। वो फंसाना, ये दो चीजें हैं, वो फंसाना उसके चाहता अलावा था। कोई चीज नहीं है। ये तो भाई अगर सीधी था, बात है। अगर तो हाँ था फंसा राणा गया, साहब वो फंसा रहे थे, तो ये खुद फंस ट्रैप गया ना था एक। वो फिर। मौलाना साहब उस ट्रैप में आ गए। हाँ, हाँ तो वो खुद ट्रैप में आ गया, वो बिल्कुल खुला खुला खुद ट्रैप में आ गया यार रसूल। उन्होंने यार लगाया खुद ट्रैप में आ गया, नहीं, यार रसूल ने खुद लगाया, ट्रैप में आ गया, तो वो खुद ट्रैप में आ गया ना फिर। खुद नहीं आ गया बेचारे, ट्रैप है बाद ये मसला है। बाजो कभी चीका, बाजो के चीका मारनी है भाई। राणा साहब कोई चीज है। अच्छा नून साहब, आप को मैंने जनरेटर बनाया हुआ है, ब्रोड को देख माशाअल्लाह। लीजिए, मैं खाना खा रहा हूँ, ब्रोड को देख लीजिए, ठीक है। मैं देख लेता हूँ इंशाअल्लाह। तो देखिए राणा साहब, मसला ये है कि जब हम नवाला हम प्याला साथी जो है वो भी बोल पड़े ना, तो तब मान लेना चाहिए। मैं मलक साहब का मान लो बहुत यार, एक दोस्त और हूँ। प्रधानगी है यार, अगर तुझे हाँ, कोई शर्त सुन लाई तो लो आगे ना। मान के यार से हाँ, अब देखो थोड़ा गजल मलक फड़िया गया साहब- या झूठ बोले यार सोले जानो शरीयत नहीं पता, दोनों काम गलत। राणा साहब तुसी हुण अपनी सुनाई, तुसी मेरी सुन लेनी। चलो सुनाओ। राणा साहब मलक मैं साहब इसलिए बोलना कि मैं नींद ना आवे, सुबह सुबह टाइम आ। जब फैसला हुआ आधी अधूरी वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ, तो मुझे भी ये पूछा गया कि जी फैसला हो गया, मलक साहब को आप मुबारकबाद देते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल मैं देता हूँ मुबारकबाद, और मैंने दी। हालांकि मैं बड़ा नामनासिब समझ रहा था कि यार मेरे तो दोनों तरफ भाई हैं, मैं किधर जाऊं, लेकिन फिर भी मैंने मलक साहब आपको मुबारक हो। जब वो हमने पूरी देखी है तो फिर इवन हम नवाज जो दोस्त हैं करीब करीब वाले, उनकी राय भी बदल गई। उसकी एक दो मिसालें हैं, आपको कोई ढकी छुपी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जब बहुत ज्यादा लोग बोलना शुरू कर दें, ताकि खुदा को की आवाज को नकारा खुदा समझो, तो फिर जो है मान जाना चाहिए बंदे को। तो मलक साहब के करीबी लोग भी अब उनकी राय बदल गई है। एवाज हनी ट्रैप, ये मैं मानता हूँ, ये आपने जो बोला ना हमदा, ये ट्रैप ही था। इनको सारा ही पता था कि मिर्जा साहब ने एक जगह पे उधर से निकलने का भी कहा है और एक जगह पे ना निकलने का भी कहा हुआ है। और नहीं, मिर्जा ने क्या ही नहीं है, और तो अंग्रेज ने क्या, दो वाले मलक साहब, और जो निकलने का क्या ना, वो अंग्रेज ने क्या कि जगह से चल जाओ, वो भी तो क्वारंटीन ही है ना, वो भी तरीका तो ठीक है। भी ठीक है, उसका हवाला देना चाहिए ना। आते हवाला दे, हवाला अकबर साहब मैं माजरत चाहना वा, अंग्रेज़ का तुसी हवाला दे सकते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी और अंबिया की मिसाल या तरजीह नहीं दे सकते मिर्ज़ा साहब ना। बराए मेहरबानी मैं एक बराड़ तो सुनिया तो अकबर साहब तुम साडे वड्डे हो, मैं माजरत चाहना वा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई तलक वास्ता नहीं मिर्ज़ा साहब ना। मैनू कह रहे हो या जी जी, अच्छा क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾ, ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ। मैं अकबर कोई भी साहब काम आज है, तो कोई भी काम है, अंबिया ते ना लिया करो। अंबिया ने तो जाने दे दी है, लेकिन जो अलम जो हक का उन्होंने थामा हुआ था, इन्हें नहीं दिया। नहीं हजरत नु ना ये मैंने डाटा जान दे, ना इन्होंने मेरा पता नहीं है,
ताकि भाई बड़े पुराने ने राणा साहब भी हमारे प्यारे भाई हैं, ये जमाती एक्स जमाती लेकिन इन्हों ਨੂੰ मेरे नाम ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ दिल भी कैमरा हो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।